Okay, class, let's continue. How weather and topography affect air pollution. Changes in temperature throughout the day produces air circulation patterns that dilute and disperse air pollutants. During a temperature inversion होती क्या है? Basically, a layer of cold air temporarily trapped near the ground by a warmer upper layer. ठीक है, जो कोल्ड एयर है जो कि वार्मर अपर लेयर की वजह से नीचे ट्रैप हुई हुई है. However, polluting gases and particulate matter remain trapped in high concentrations close to the ground, where people live and breathe. Temperature inversion usually persists for only a few hours before solar energy warms the air near the ground. Sometimes a stalled high pressure air mass allows a temperature inversion to persist for several days, causing atmospheric stagnation. Okay, here are the components of a photochemical smog. Figure 8.9 के अंदर आप देख सकते हैं. Photochemical smog is a mixture of that includes ozone, pyroxyl nitrates, जिसको हम PANS कहते हैं, nitric acid and organic compounds such as formaldehyde. अब इसके सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या है? सबसे पहला नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि अगेन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से जनरेट होता है. मतलब आपकी कार के जो कंबशन से जो आपकी वेस्ट प्रोड्यूस होती है कार के अंदर से, वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है बेसिकली, और हाइड्रोकार्बन जो कि HC कहलाते हैं. तो होता ही है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि फैक्ट्रीज वगैरह से और डिफरेंट आपकी कम्बस्शन इंजन वगैरह से, और फिर हाइड्रोकार्बन जो भी इनसे जनरेट होते हैं, ये तमाम एटमॉस्फेयर में जाते हैं और रिएक्शन होता है इन दी एटमॉस्फेयर. रिएक्शन किस चीज के साथ होता है कि इसके साथ वाटर एक तो ऐड हो जाता है, क्योंकि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होता है, H2O. ठीक है, और ये O2 के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं, जो NO2 है. और इससे NO प्लस ऑक्सीजन एटम्स जो है वो आपका जो है NO2 बना देता है. इसके अलावा जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स हैं, इससे HC बन जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से ऑक्सीजन और जो ये फॉर्मेल्डिहाइड्स एंड अदर एल्डिहाइड्स हैं वो बनाते हैं. जबकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द HC एंड NO, ये जो है आपके लिए बेसिकली ओजोन बना देते हैं. और जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी, NO2, इससे नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO, और पैंस या पर्सनल नाइट्राइड्स बन जाते हैं. और ये सारे फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से स्मोक जनरेट होती है. एयर पोल्यूशन may affect precipitation. A Taoist temple on Mount Hua in China. Note the proximity of the mountain to the plain where air pollution is produced. For several years, climate scientists have noticed that mountainous areas in the western United States are receiving less precipitation than usual. The effect has been particularly pronounced in mountains located downwind from cities, leading scientists to speculate. G. सर स्क्रीन नहीं आ रही. Okay, let me share it again. Can you guys see the screen now? Yes, sir. Okay, great. Leading scientists to speculate that air pollution may be altering precipitation patterns. Precipitation में पहले बता चुका हूँ, बारिश को कहते हैं. However, long-term data to support this hypothesis were not available until recently. In 2007, climate scientists evaluated weather data taken atop Mount Hua, a sacred mountain in China that overlooks a plain where several cities, such as scores of air pollution, are located. The data, which included precipitation, visibility, and humidity data, have been measured since 1954. By subtracting the effect of humidity on visibility, scientists have been able to establish the amount of air pollution suspended in the air
The scientists have correlated high visibility, that is low air pollution, with substantially more precipitation than when air uh, pollution levels were high. They caution, however, that the link between air pollution and precipitation pattern is still tentative and well requires more research. वेल एक ये चीज फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था साइंटिस्ट से सेवरल इयर्स अगो के एयर पोल्यूशन की वजह से जो बारिशें हैं वो कम हो रही हैं इन सर्टेन माउंटेनियस एरियाज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके अगेंस्ट ये एक एविडेंस मिला है एट माउंट हुआ इन चाइना कि यहाँ पर जब उन्होंने डाटा रिकॉर्ड किया उसको चेक किया ओवर द पास्ट फ्यू 50-60 ईयर्स, तो उन्हें पता चला कि वाकई जब एयर पोल्यूशन ज्यादा होती है तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन कम हो जाती है, बारिश कम हो जाती है। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज की टोपोग्राफी की वजह से, उनकी लैंड की जियोग्राफी की वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो उन एरियाज के अंदर डिफरेंटली इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया हैज सम ऑफ द वर्स्ट स्मॉग इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट्स लोकेशन इन कॉम्बिनेशन विद इट्स सनी क्लाइमेट इज कंडक्टिव टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल टेम्परेचर Iverson that trap photochemical smog near the ground sometimes for long periods। तो इस वजह से यहाँ पर अच्छी स्मॉग हो जाती है। और एक और फैक्टर जिसको एक्सरबेट कर देता है वो यहाँ पर हाई नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटर व्हीकल्स है इवन पर पर्सन। दिस इज द स्टेट इन द अमेरिका जहाँ पर पर्सन कार्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो ओवरऑल एनी वन पर्सन वुड हैव एट एनी गिवन टाइम 2 to 3 कार्स एट लीस्ट। अब फोटोकेमिकल स्मॉग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ द अर्बन हीट आइलैंड एंड डस्ट डोम्स। Streets, rooftops, and parking lots in areas of high pollution population density absorb solar radiation during the day and radiate heat into the atmosphere at night. Heat from human activities such as fuel combustion is also highly concentrated in cities. The air in urban areas therefore forms urban heat islands in the surrounding suburban and rural areas. So, what is an urban heat island? The local heat build up in an area of high population. तो यहाँ पर जो लोकल एरिया में जहां पर हाई पॉपुलेशन है वहां पर हीट का जो बिल्डअप है उसे हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। ये आप यहाँ देख सकते हैं इस इफेक्ट को, अर्बन हीट आइलैंड को फिगर 8.12 के अंदर। अगर आप ये नोटिस करें तो जो रूरल एरियाज हैं ऑन द साइड्स, जो फार्मलैंड्स हैं, सबर्बन रेजिडेंट्स हैं, पार्क्स हैं, इफ यू वुड नोटिस इन दिस, तो जैसे ही आप रूरल एरिया से मूव करते हैं टुवर्ड्स द सबर्बन्स एंड कमर्शियल एंड देन टुवर्ड्स डाउनटाउन, एग्जैक्टली एयर टेम्परेचर भी उसके साथ मूव कर रहा है। सो इफ यू सी रूरल एरियाज में सबसे कम है एट द बॉटम लाइन, एज सुन एज यू हिट द सबर्बन एरियाज वहां पर अच्छा खासा राइज कर जाता है। कमर्शियल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और फिर डाउनटाउन में पहुंचते ही इट पीक्स अप एट द हाईएस्ट लेवल्स। तो जितनी ज्यादा कंक्रीट, जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ट्रैप करेगी, उसको ट्रैप करेगी, और दिस क्रिएट्स द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि हमने आज डिस्कस करना था, दैट इज द डस्ट डोम। हाँ, इससे पहले जो एक चीज है, मैं पहले एक चीज और कवर कर दूं। अर्बन हीट लाइट जो हीट आइलैंड्स हैं, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बिल्डअप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट डोम्स ओवर द सिटीज। सो ये आप देख सकते हैं डस्ट डोम इन फिगर 8.13 ए, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। डस्ट डोम होता क्या है, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर दें। अ डस्ट डोम ऑफ हीटेड एयर, this is a dome of heated air that surrounds an urban area and contains a lot of air pollution। ये एक ऐसा एरिया जहां पर डस्ट जो है वो एक अर्बन एरिया को सराउंड कर लेती है, जो कि अच्छी खासी एयर पोल्यूशन कंसिस्ट करता है। Pollutants concentration in a dust dome becomes convection, that is the vertical motion of the warmer air lifts pollutants into the air, where they remain because of the somewhat stable air masses the urban heat island produces।
if wind speeds increase, the dust dome moves downwind from the city and the polluted air spreads over rural areas. So ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आ गया डस्ट डोम जो है फिगर, अगर आप 8.13 के अंदर देखें तो एक अंदर ये डस्ट डोम है कि ये सारी जो डस्ट होती है ये राइज हो जाती है वर्टिकल, बेसिकली एक कॉलम बन जाता है जहां पर सारी डस्ट नीचे से राइज करके ऊपर की तरफ उस सिटी के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, क्योंकि हवा यहाँ ज्यादा मूव नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स हैं, कंसंट्रेशन है, हवा बहुत इजीली मूव नहीं कर सकती, जबकि रूरल एरियाज में कुछ भी ना, ट्रीज है, हवा जैसे चाहे मूव कर सकती है। इसलिए ये डस्ट डोम यहीं पर रहता है और एक वर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट हो जाती है। लेकिन जब तेज हवा चलती है, जैसे कि आप नीचे वाली फिगर में बी में देख सकते हैं, तेज हवा जो है वो विंड को डिसरप्ट कर देती है और ये विंड आगे स्प्रेड हो जाती है हॉरिजॉन्टली, जैसे नॉर्मली हॉरिजॉन्टल विंड्स चलती हैं ऑन द अर्थ सरफेस। और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है, जिस तरफ को हवा चल रही होगी उस तरफ के जो रूरल एरियाज है उनके अंदर भी स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन डिसिपेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि शहर में ये कॉन्सेंट्रेटेड थी। Now the most important thing, controlling air pollution that we want to do. Technology exists to control all the forms of air pollution discussed in this chapter. Smokestack fitted with the electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, and other technologies remove pollutants matter from the air. G. Then careful land excavating activities such as sprinkling water on dry soil being moved during road construction reduces the creation of particulate matter. इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप ये देखें, एक मैं आपको ये दिखाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। अगर आप इसमें देखिए, in an electrostatic precipitator the electrode imparts a negative charge to the particulates in the dirty gas. These particulates are attracted to the positively अस्सलामुअलैकुम charged. सर। जी सर काइंडली वो आप स्लाइड्स चेंज नहीं कर रहे, तो वो भी काइंडली आप चेंज कर। नहीं, मैं चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली, ये ना जूम के अंदर कोई इशू हो गया है। ये जूम मेरे जो चेंजेस हैं उनको ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं है, जैसे कि ये अक्सर आपके पास जो आप स्क्रीन शेयर करते हैं वो ग्रीन एक बॉर्डर में आ रही थी, वो भी नहीं आ रही, तो ये जूम में इशू है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। समटाइम्स जूम डज दिस। अगर दोबारा ये फ्रीज हो जाए तो मुझे बताइएगा। ये अच्छा, आपने लास्ट वाला देखा था, ये आपने देखा था डस्ट डोम वाला? नो और सर, ये नहीं देखा। अर्बन हीट आइलैंड वाला? नहीं सर, नहीं देखा। तो ये मैं आपको दोबारा दिखा दूं, अर्बन हीट आइलैंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे आप रूरल एरिया से सबर्ब्स और समर से कमर्शियल और डाउनटाउन एरियाज की तरफ चले जाते हैं, ज्यादा अर्बन एरियाज की तरफ चले जाते हैं, तो उसी तरह से टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि कंक्रीट ज्यादा हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली डे में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रात को उसको रेडिएट कर रहा है कॉन्स्टेंटली। वहां पर हवा इतनी अच्छे से नहीं चल सकती, वहां पर मूवमेंट ऑफ एयर डिफिकल्ट है, इस वजह से वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा। अगर आप देखें तो ये रूरल एरियाज के अंदर बिल्कुल सबसे कम टेम्परेचर है। जैसे जैसे आप रूरल से सबर्ब्स की तरफ जाने लगते हैं तो डेफिनेटली वहां पर टेम्परेचर फिर से बढ़ जाए। जैसे आप पार्क की तरफ है तो वापस नीचे गिर गया। इस तरह से आप जैसे जैसे वापस अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं टेम्परेचर फिर बढ़ने लग जाता है, कमर्शियल एरिया में बढ़ जाता है। और डाउनटाउन जहां पर बहुत कंसंट्रेशन होती है बिल्डिंग्स की और फुल वर्कलोड हो रहा होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है सिटी की बिल्डिंग्स की, वहां पर सबसे हाई टेम्परेचर नोटिस किए गए हैं। दिस इज कॉल्ड द अर्बन हीट आइलैंड। इसी तरह से ये डस्ट डोम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि विंड जो है वो वर्टिकली मूव कर रही होती है इन सिटी, क्योंकि वहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो नॉर्मल विंड्स की है वो वहां पर पॉसिबल नहीं होती, बिल्डिंग्स की वजह से, हीट की वजह से। तो यहाँ पर ये साथ ही अपने साथ डस्ट को उठाकर पूरी बिल्डिंग, पूरे इस सिटी के अंदर स्प्रेड कर रही थी। अक्सर आपको ये भावलपुर में भी या डिफरेंट सिटीज के अंदर जहां भी जाएं, एक हेजी सा नजर आएगा आगे रोड्स को, जो कि पहले नहीं नजर आता था लोगों को, पहले बिल्कुल क्लियर नजर आता था। क्यों? इसी डस्ट डोम या इस तरह के स्मोक वगैरह की वजह से। जैसे ही तेज विंड चलती है वो इस सारी डस्ट को उड़ा कर ले जाती है, लेकिन वो फिर इसको उस डायरेक्शन में जहाँ रूरल एरियाज है वहां पर फिर ये सारी पोल्यूशन डिस्पर्स होकर उन एरियाज में भी स्प्रेड कर जाती है। ओके, कैन यू सी दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ एक बार। यस सर, श्योर था। ओके, अभी नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ठीक है, these particulates are attracted जो कि in electrostatic precipitator the electrode imparts a negative charge to the particulates in the dirty air gas। ठीक है, these particulates are attracted to the
positively charged participator walls and then fall off into the collector, जो नीचे कलेक्टर दिया हुआ, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो रॉड है, ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर या फिर ये जो डर्टी गैस जैसे कि स्मोक वगैरह है, ये चिमनी से अगर निकलनी है, ठीक है, तो चिमनी से निकलने से पहले आप उसके सामने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि वो जो गैस है, वो डर्टी गैस स्मोक है, वो जब आगे जाती है और उसको ये जो रॉड सेंटर में आप देख सकते हैं, इस रॉड के साथ से गुजर के जाती है ऊपर की तरफ राइज करने के लिए, क्योंकि हॉट एयर है तो ये राइज करेगी, क्योंकि गैस है ना, ये स्मोक है तो ये हॉट एयर है, ये राइज करेगी ऊपर की तरफ। तो जब इस पार्टिकुलर इस बीम के साथ से होते हुए गुजरती है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इसके जो गैस के अंदर जो मौजूद सारे पार्टिकल्स हैं उनको एक नेगेटिव चार्ज दे देता है। इसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ये प्रेसिपिटेटर है, इसकी जो वॉल्स हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज पहले से किया गया होता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारे जो गैस के अंदर मौजूद डिफरेंट पार्टिकुलर्स हैं, डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं, उन सबको अट्रैक्ट कर लेता है और वो सारे दीवार के साथ चिपकने लग जाते हैं। जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो अपने वजन से नीचे गिर जाते हैं। तो वो जो नीचे गिरते हैं तो वहां पर डस्ट फॉल ऑफ हो जाती है, जो एक कलेक्टर होता है, नीचे कलेक्टर बना होता है उस कलेक्टर के अंदर, इसलिए ये एयर में नहीं जाती। और ऊपर से क्लीन एयर जो है, अगर आप देखें एक छोटा सा एरिया दिया है जहां से क्लीन एयर वापस एटमॉस्फेयर में जा सकती है। तो जितना डर्ट वगैरह होती है वो नीचे ट्रैप हो जाती है और वो नीचे स्टोर हो जाती है। और अब आप ये देख सकते हैं कि एमिशंस जो है इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1970 से 2011 तक की किस तरह से चेंज हुए हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बहुत रेडिकल चेंज आया है 1970 से 2011 के अंदर, अच्छी खासी डिक्रीज कर दी गई है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड भी कम कर दी गई है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये तमाम डिक्रीज हुए, जबकि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इंक्रीज हुए, जो PM10 है। और PM2.5 द मोस्ट डेंजरस, जो कि आजकल स्मोक के अंदर अवेलेबल होता है, दैट इज वेरी कॉमन। और ये ज्यादातर फिल्टर्स इसको पकड़ नहीं सकते, और इसी वजह से ये ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है, बिकॉज ये जो आपके लंग्स हैं उसके अंदर ये भी पार्टिकल बहुत इतना छोटा होता है कि ये लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा डीप चला जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा फिर उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। ये अगेन यूएस के बारे में उन्होंने क्लीन एयर एक्ट लगाया और उसके बाद किस तरह से चेंजेस किए। नाउ एयर पोल्यूशन इन डेवलपिंग कंट्री, जो कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, डेवलपिंग के अंदर कोई कंट्रोल है ही नहीं। एज डेवलपिंग नेशंस बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, दे आल्सो प्रोड्यूस मोर एयर पोल्यूशन। The leaders of most developing countries believe they must industrialize rapidly to compete economically with more highly developed countries. Environmental quality is usually a low priority in the face of economic development. इस वजह से ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं बाहर से, और वो जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा, ये बाहर से अक्सर आपके पास सस्ती चीजें, फोटोकॉपियर्स, प्रिंटर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वगैरह बाहर से जो कि आउटडेट हो चुके थे वो यहाँ आ रहे होते हैं। जी जी सर। इन फिगर 8.16 यहाँ पर एयर पोल्यूशन आप देख सकते हैं चाइना के अंदर, ये कोल पावर्ड स्टील मिल जो है ना रिलीज कर रही है पोल्यूशन इन दी लियोनिंग प्रोविंस चाइना के अंदर। ऑल फॉर्म्स पोल्यूशन आर इंक्रीजिंग एज चाइना बिकम्स मोर इंडस्ट्रियलाइज, क्योंकि अब ये इंडस्ट्रियलाइज होता जा रहा है चाइना, तो यहाँ पर बहुत हर टाइप की जो है ना पोल्यूशन है वो रिलीज हो रही है, और इस वजह से यहाँ पर इस एरिया में अब स्मॉग ज्यादा होने लग गई है। नाउ द इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इंडोर्स, ये बड़ा फैक्ट है कि ह्यूमन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इंडोर्स, एंड कंटेमिनेटेड इंडोर्स एयर कैन लीड टू सब्सटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज, इन पर्टिकुलर इन डेवलपिंग कंट्रीज। कुकिंग विद सॉलिड फ्यूल्स, जो कि वुड वगैरह, कोल या पीट्स वगैरह की साथ है, दैट इंक्रीजेस अ लॉट ऑफ हेल्थ इंपैक्ट्स। एक अब नई चीज जो डेवलप हुई है वो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब ये बेसिकली ये हेल्थ ऑफिशियल जो है उन्होंने इसको ज्यादा फोकस करना शुरू किया है। अब ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है क्या? ये बेसिकली आई इरिटेशन, नोजिया, हेडेक, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डिप्रेशन एंड फटीग जो कॉज्ड बाय इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स है, उसको हम कहते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम।
The EPA estimates that annual medical costs for treating the health effects of indoor air pollutants in the United States exceed $1 billion. अरे ये अभी पिछले वाले की फोटो भी आ गई। इंडोर एयर पोल्यूशन जैसे कि जो लकड़ी के ऊपर अक्सर हमारे यहाँ लोकल गांव वगैरह के अंदर लोग या सबर्ब्स के अंदर भी कुछ एरियाज के अंदर लकड़ी पे खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसके साथ बहुत ज्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन होती है। अब जैसे कि जो मैं अभी सिक बिल्डिंग सिंड्रोम डिस्कस कर रहा था, इसके अंदर एक जो गैस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी वो रेडोन है। रेडोन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस रेडियो एक्टिव गैस प्रोड्यूस्ड नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम इन अर्थ्स क्रस्ट। अब ये आप कुछ नहीं कर रहे, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है रेडोन जैसी गैस। In the United States, radon has become an increasingly important indoor air contaminant, especially as laws and changes in the habitat have reduced second-hand cigarette smoke exposure. Radon seeps through the ground and enters buildings where it sometimes accumulates to dangerous levels. Radon emitted into the atmosphere gets diluted and dispersed and is of little consequence outdoors. अब ये आउटडोर तो कुछ नहीं करती क्योंकि ये डाइल्यूट हो जाती है एटमॉस्फेयर की गैसेस के अंदर से और उसके बाद ये डिसिपेट हो जाती है, लेकिन घरों के अंदर ये कॉन्सेंट्रेट कर सकती है क्योंकि ज्यादा एयर वेंटिलेशन होती नहीं है। आहिस्ता 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 एक कमरे में बिल्ड होती रहेगी और जब ज्यादा हो जाएगी तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है। Radiation associated with radon decay does not penetrate deeply into human tissue. Consequently, only ingested or inhaled radon harms the body. अभी आपके रेडोन में आपको दिखाता हूँ घर के अंदर किस तरह से आ रही है। How radon infiltrates a house. Cracks in basement walls or floors opening around pipes and pores in concrete blocks provide some of the entrants for radons. तो जहां कहीं फ्लोर में क्रैक था उसमें से जमीन में से आ गई, ड्रेन पाइप्स के थ्रू आ गई, उनके साइडों के ऊपर जो एरिया होता है, इस तरह से वॉल्स के अंदर कोई फाउंडेशन का कोई क्रैक है वहां से निकल के आ गई और ये आपके घर के अंदर फैलती जाएगी। फिर ये अगर तो आपकी खिड़कियां वगैरह खुली हैं तो ये रेडोन आउटडोर एस्केप कर जाएगी और एयर रिफ्रेश होती रहेगी तो काफी हद तक बेटर हो जाएगा। अदरवाइज ये आपके पूरे घर के अंदर स्प्रेड कर सकती है। अब ये एक मैं आपको इंडोर एयर पोल्यूशन के सारे सोर्सेज दिखा रहा हूँ फिगर 8.19 के अंदर। कैन एवरीवन सी? यस सर। Homes may contain higher levels of air pollution than outdoor air, even near polluted industrial sites. ठीक है कि इंडोर जो है ज्यादा होगी और अगर आप बाहर चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी रह रहे हो तो बाहर कम होगी, इंडोर जो होगी आपके घर के अंदर ज्यादा एयर पोल्यूशन होती है। नाउ यू कैन सी दिस कि अगर आप ये देखें कि डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैसोलीन फ्रॉम ऑटो लॉन मोवर्स जो हैं या गाड़ी से या लॉन मोवर की गैसोलीन की बर्निंग से जो रिलीज होती है वो। देन मिथिलीन क्लोराइड फ्रॉम पेंट स्ट्रिपर्स एंड थिनर्स के पेंट स्ट्रिपर्स या थिनर्स अगर घर में यूज हो रहे हैं तो उसके साथ जो मेथिलीन क्लोराइड घर के अंदर आई है। फिर पेस्टिसाइड्स फ्रॉम गार्डनिंग प्रोडक्ट्स की गार्डनिंग करने की वजह से जो कोई पेस्टिसाइड्स आपके घर में रह जाते हैं थोड़े बहुत। और रेडोन फ्रॉम यूरेनियम कंटेनिंग रॉक्स के कोई पत्थरों के अंदर से ग्राउंड के अंदर से ही रेडोन वगैरह रिलीज हो रही होगी। इसी तरह से टोबैको स्मोक फ्रॉम सिगरेट्स एंड पाइप्स के सिगरेट्स वगैरह के लिए से जो टोबैको वगैरह से स्मोक जनरेट होती है घर के अंदर। इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम फर्नीचर्स एंड कारपेटिंग मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर्स पार्टिकल बोर्ड्स एंड फोम इंसुलेशन। तो इन सब से फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज होती है। ये जो फोम है, फर्नीचर है, कारपेट है, इस तरह से टेट्राक्लोरो एथिलीन जो कि ड्राई क्लीनर्स और इस तरह के फ्लूइड से यूज होती है। टेट्राक्लोरो एथिलीन जो कपड़ों में से आपके रिलीज हो रही होगी ड्राई क्लीनर से अगर आपने कोई ड्राई क्लीन करवाए। इस तरह से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो कि मेथबॉल क्रिस्टलीन या एयर फ्रेशनर्स वगैरह से, मेथबॉल क्रिस्टलीन से जो आपके घर के अंदर आ जाती है एयर फ्रेशनर्स के थ्रू। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरीन ट्रीटेड वाटर इन हॉट शावर्स कि कोई आपने टब के लिए क्लोरोफॉर्म या इस तरह से क्लोरीन अगर डाली है वाटर को क्लीन रखने के लिए पंप स्विमिंग पूल्स में डाली जाती है
उससे क्लोरोफॉर्म रिलीज होती है। नाइट्रोजन, इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम अनवेंटेड गैस स्टोव्स, वुड स्टोव्स, जो भी केरोसिन हीटर्स वगैरह हो गए, तो जो भी गैस वगैरह स्टोव से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं, अगर वेंटेड नहीं है किचन तो। इस तरह से अमोनिया फ्रॉम हाउस होल्ड क्लीनर्स, कि जो हाउस होल्ड क्लीनर्स है उनसे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। आप जो सरफेस वगैरह फ्लोर साफ करने के लिए यूज करते हैं उसमें अमोनिया होती है। देन एस्बेस्टियन, जो कि पाइप्स वगैरह, इंसुलेशन वगैरह, विनाइल टाइल्स वगैरह से खुद नेचुरली रिलीज हो रहा है एस्बेस्टोन। और फिर फंगाई एंड बैक्टीरिया फ्रॉम डर्टी हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग डक्ट्स, के हीटिंग और एयर कंडीशनिंग अगर डर्टी होंगे उससे फंगाई और बैक्टीरिया स्प्रेड होंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम फॉल्टी फर्नेसेस, ऑटो लेफ्ट रनिंग जो है, इसकी वजह से फर्नेस वगैरह फॉल्टी है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी एक्यूमुलेट हो सकती है घर के अंदर। So you can see how much concentration there would be of these pollutants. तो बंदा घर में ही ना रहे। नहीं, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि घर को वेंटिलेटेड रखें, विंडोज खोलते रहें। अच्छा। Okay, moving on to the last page of today's session, the case study. Curbing air pollution in Chattanooga. ये बड़ी अच्छी interesting example है from Chattanooga, Tennessee. During the 1960s, the federal government gave Chattanooga, Tennessee, the dubious distinction of having the worst air pollution in the United States. The air was so dirty in this manufacturing city that sometimes people driving downtown had to turn on their headlights in the middle of the day. The orange air soiled their white shirts so quickly that many business people brought extra ones to work. To compound the problem, the mountains surrounding the city kept the pollutants produced by its inhabitants from dispersing. इतनी डर्टी एयर थी कि आपको हेडलाइट्स ऑन करके दिन के वक्त काम पे जाना पड़ता था लोगों को। और जो बिजनेसमैन होते थे वो अपनी शर्ट साथ एक्स्ट्रा लेकर जाते थे, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ही उनकी शर्ट्स जो थी वो पीली हो जाती थी ड्यू टू पोल्यूशन जो उन्होंने पहनी होती थी। सर ये कौन सी जगह थी? चैटिनोगा के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, टेनेसी के अंदर। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट। जस्ट अ तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक चैटनोगा, टेनेसी थी, उस वक्त बड़ी ही ये डर्टी एरिया उस वक्त था जब इस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको ठीक करना है हमने। और यहाँ से पोल्यूशन डिस्पर्स इसलिए भी नहीं होती क्योंकि चैटनोगा दो माउंटेन्स के दरमियान में था, तो इस वजह से जो माउंटेन्स के दरमियान में होने की वजह से उसकी जो पोल्यूटेड एयर थी वो डिस्पर्स भी नहीं हो सकती थी हवा की वजह से बड़ा इजीली। Today, the air in this scenic mid-sized city of 2 lakh people is clean, and Chattanooga ranks high among US cities in terms of air quality. City and business leaders are credited with transforming Chattanooga's air. Soon after the passage of the Federal Clean Air Act in 1970s, the city established an air pollution control board to enforce regulations controlling air pollution. New local regulations allowed open burning by a permit only, placed limits on industrial odors and particulate matter, outlawed visible automotive emissions, and set a cap on sulfur content in fuel, which controlled the production of sulfur oxides. Businesses installed expensive air pollution control devices. The city started an emission-free electric bus system. Chattanooga also decided to recycle its solid waste rather than build a emission-producing incinerator. तो जैसे ही इनके लोगों ने देखा कि यार इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई है, तो आज ये सिटी बहुत ज्यादा क्लीन है। इसके लोग और बिजनेसेस ने इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, जो कि जैसे क्लीन एयर एक्ट एस्टेब्लिश हुआ, बन गया अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया और रेगुलेट किया कि कितनी पोल्यूशन कौन सा बिजनेस रिलीज कर सकता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें रिलीज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने सल्फर के ऊपर बैन लगाया, ऑर्डर और पार्टिकुलर मैटर पे बैन लगाया कि नहीं सिर्फ इतना आप कर सकते हैं जनरेट,
इससे ज्यादा नहीं। तो वो हर किसी को अपने लिए पोल्यूशन के क्लीन करने वाले प्लांट्स लगवाने पड़े बिजनेसेस को, और व्हीकल्स जो थी उनके अंदर भी सल्फर के कंटेंट के ऊपर पाबंदी लगाई कि गाड़ी के पेट्रोल में ज्यादा सल्फर नहीं हो सकती, तो उस वजह से वो पेट्रोल ऑन वो लेने से सल्फर कम हो। और इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करवाई चैटनोगा के अंदर। और इसके अलावा जो इन्होंने डिसाइड किया कि रादर देन कि हम अपने एमिशंस को और जो वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट उसको बर्न करें, हम इसकी जगह इसको रिसाइकल करेंगे। In 1984, the EPA declared Chattanooga in attainment for particulate matter. This designation meant particulate levels had been below the federal health limit for 1 year. The city reached attainment status for ozone in 1989. Since then, the city's levels for all 7 EPA regulated air pollutants have been lower than federal standards require. तो आहिस्ता आहिस्ता 1984 के अंदर इन्होंने अपने पास जो था पार्टिकुलर मैटर कम कर लिया, जो कि आपके सांस के थ्रू आपकी बॉडी में जाकर डैमेज कर सकता है। और 89 के अंदर इन्होंने ओजोन के लेवल्स कम किए, और अब तकरीबन सारे ही जो ईपीए के रेगुलेशन के गैसेस हैं वो सब कम है। In the early 2000s, Chattanogans continued to move their city towards sustainability. The city plans to convert a run-down business district into a community in which people live near their places of work. Businesses located in this district will form an industrial ecosystem in which the wastes of one business are raw materials for another business. तो उन्होंने डिसाइड किया कि सिटी का जो एक एरिया है जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ क्योंकि वो जाना चाह रहे हैं, तो रन डाउन एक एरिया है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पुराना, तो उसको एक प्रॉपर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाए, जहां बिजनेसेस हो, जहां पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के रॉ मटेरियल्स को वेस्ट को लेकर उससे कुछ नया बना सके, और सारे जो लोग हैं वहां पर काम करने वाले वो भी वहीं करीब रहे, ताकि वो एक ऐसी एनवायरनमेंट जहां पर दूर से लोगों को ट्रेवल ना करना पड़े। ये चैटनोगा आज है, जो कि कहीं जबकि लोगों की शर्ट तक पीली हो जाती थी विद इन अ डे। तो Chattanooga, Tennessee is air quality has improved dramatically during the past several decades. ये आप देख सकते हैं 200 से पार्टिकुलेट मैटर 200 से लेकर कहां 1989 के अंदर 50 तक भी नीचे चला गया। So that's it for today. Thank you everyone. So we'll discuss chapter 9 next time. Thank you. Allah Hafiz. Inshallah.